کہ مجھے شکوہ نہیں برباد رکھ برباد رہنے دے، مجھے شکوہ نہیں برباد رکھ برباد رہنے دے، مگر للہ اپنی دل میں میری یاد رہنے دے۔ مجھے شکوہ نہیں برباد رکھ برباد رہنے دے، مگر للہ اپنے دل میں میری یاد رہنے دے۔ اور حضور اشرفی میاں اکثر کہا کرتے تھے کہ یار نہ رکھ کوئی غبار آ دل خاکسار میں، یار نہ رکھ کوئی غبار آ دل خاکسار میں، غیروں سے خالی ہے یہ گھر تیرے ہی انتظار میں۔ اور وعدہ وصل کر کے ہائے آیا نہ وہ پری جمال، صبح سے شام کر دیے بیٹھے ہیں انتظار میں۔ تو آج سلطان الہند کی بارگاہ میں ہمارا آپ نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور یہ نور کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، جب اپنے سینے کو عصبیت سے خالی کر لیتا ہے، دنیا کی تمام مکر و فریب سے خالی کر لیتا ہے، اور جب وہ بندہ مومن جب اپنے رب کے بارگاہ میں جھکاتا ہے اور جب بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ ریاضت کرتا ہے، تب جا کر کے وہ جب اپنے آپ کو فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کر لیتا ہے تو اللہ اس کے آنکھ میں وہ نور پیدا کرتا ہے کہ وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی دیکھتا ہے، جو سامنے ہے اس کو بھی دیکھتا ہے اور جو پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو یقیناً سلطان الہند کا بہت احسان ہے ہم تمام لوگوں پہ۔ ہندوستان کے اندر بہت سارے بزرگان دین ہیں، یقیناً سب کا کرم ہے، سب کا احسان ہے، ہم کسی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ سب کے بارگاہ میں ہم نظر عقیدت پیش کرتے ہیں، بس اس خیال کے ساتھ کہ متاع زندگی جس نے لٹا دی جانے رحمت پر، متاع زندگی جس نے لٹا دی جانے رحمت پر، رحمتوں کے پھول برسے اس کی تربت پر۔ تو آج سلطان الہند کے بارگاہ میں ہم نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں سلطان الہند کون ہے؟ ایک شاعر نے کہا تھا کہ غریبوں بے بسوں کی یوں حمایت کون کرتا ہے، بلائیں روک کر بولے حفاظت کون کرتا ہے۔ غریبوں بے بسوں کی یوں حمایت کون کرتا ہے، بلائیں روک کر بولے حفاظت کون کرتا ہے۔ اور مکمل 800 سالوں سے وہ بھارت کے راجا ہیں، میرے خواجہ پیا جیسی حکومت کون کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکمل 800 سالوں سے وہ بھارت کے راجا ہیں، میرے خواجہ پیا جیسی حکومت کون کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے اجمیری سرکار ہی کچھ ایسے ہیں۔ اور یقیناً یہ سلطان الہند کا کرم ہے، آج پورے ہندوستان سے لوگ سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کی بارگاہ میں لوگ نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں بلکہ دیگر ممالک سے بھی لوگ وہاں پہ حاضر ہیں، عقیدت اور محبت کے ہار و پھول پیش کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے ان کی شخصیت کیا ہے؟ جب آپ سلطنت مغلیہ کا 5واں بادشاہ شاہجہاں کا تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ جب ان کا بیٹا حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ جب 17 سال کے ہوئے، جب انہوں نے اجمیر جانا چاہا تو شاہجہاں قریب بلایا، بلانے کے بعد شاہی لباس پہنایا، شاہی لباس پہنانے کے بعد شاہی تاج پہنایا، اور پہنانے کے بعد ایک نصیحت کرتا ہے کہ جب تم یہاں دلی سے نکلو، جب تمہارے شان اور تمہارے مرتبہ کو لوگ دیکھے تو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ کسی شاہی خاندان کا شہزادہ جا رہا ہے، مغلیہ سلطنت کا کوئی شہزادہ جا رہا ہے، لیکن سنو یہاں سے جاؤ تو یقیناً شاہانہ تمطراٹ کے ساتھ جاؤ، شان بان کے ساتھ جاؤ، لوگ دیکھنے والا دیکھے اور کہے کہ ہندوستان کا بادشاہ کا بیٹا جا رہا ہے۔ جو ہی اجمیر کی دھرتی آئے یہ شاہی لباس اتار دینا، گردن جھکا دینا اور اس انداز میں
तुम ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी देना कि दुनिया देखने वाला ये देख कर कहे कि मोइनुद्दीन का गुलाम हाजिर हुआ है। कोई बादशाह का बेटा नहीं बल्कि गरीब नवाज का गुलाम उनके दर पर आया है। इसीलिए एक शायर ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया था कि कड़कती धूप है और वो छांव छांव जाता है। कड़कती धूप है और वो छांव छांव जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है जब तेरा गांव आता है। कड़कती धूप है और वो छांव छांव जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है जब तेरा गांव आता है। और मेरे ख्वाजा तेरा दरबार ही कुछ ऐसा है। मेरे ख्वाजा तेरा दरबार ही कुछ ऐसा है। तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। तो ये सुल्तान हिंद सरकारे गरीब नवाज का जो है ना यकीनन हम पर एहसान है। दुनिया पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले का नाम गरीब नवाज है। यूं तो सारे बुजुर्गों ने दीन की खिदमत किया है, सबों ने मजहब इस्लाम की नुसरत और हिमायत किया है, लेकिन असल में हिंदुस्तान की धरती पर ईमान फैलाने वाले, दीन फैलाने वाले का नाम सुल्तान हिंद गरीब नवाज है। और ईमान बचाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा खान है। जिस तरह सुल्तान हिंद ने दीन की आबियारी की है, उसी तरह सैयदी सरकार आला हज़रत ने हम सबके ईमान को बचाया है, हम सबके ईमान को महफूज किया है। आज हम सुल्तान हिंद की बारगाह में नज़र अकीदत पेश करने के लिए आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। जिधर भी देखिए अजमेर के उजाले हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिधर भी देखिए अजमेर के उजाले हैं, हमारे मुल्क में वलियों के बोलबाले हैं। जिधर भी देखिए अजमेर के उजाले हैं, हमारे मुल्क में वलियों के बोलबाले हैं। और उधर कछौछा को संभाले हजरत मखदूम, इधर बिहार को तेगे अली संभाले, उधर यूपी को संभाले हैं हजरत मखदूम, इधर बिहार को तेगे अली संभाले हैं। हजरत मैं आपको ये पैगाम दिया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के रूप से देखा करता है। यकीन जानिए बुजुर्गान दीन का हम पर करम है, आज उनका एहसान है कि आज हम सुल्तान हिंद की बारगाह में नज़र अकीदत पेश करने के लिए आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। आज उनके ये उर्स का मौका है। गोया 633 हिजरी में सुल्तान हिंद का विसाल हुआ था। आज हम उस अजीम शख्सियत के बारगाह में नज़र अकीदत पेश करने के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मताए जिंदगी जिसने लुटा दी जाने रहमत पर, मताए जिंदगी जिसने लुटा दी जाने रहमत पर, खुदा के रहमतों के फूल बरसे उनकी तुरबत पर। मताए जिंदगी जिसने लुटा दी जाने रहमत पर, खुदा के रहमतों के फूल बरसे उनकी तुरबत पर। इसलिए कि यकीनन तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है ये गौहर बादशाहों के खजानों में। तो यकीनन हम लोग मुसलमान हैं, साहिब ईमान है, सुन्नी सहीहुल अकीदा ईमान वाले हैं, और हमारा ये मामला है कि अल्लाह ताला बेवसीला बंदे को दे सकता है और देता है, इसमें कोई इतराज नहीं। जब बंदा दुआ करता है अल्लाह बंदे को सुनता है, अल्लाह बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है। लेकिन फिर हम वसीला से क्यों दुआ करते हैं? सुल्तान हिंद की तवस्सुल से, कभी महबूब इलाही के तवस्सुल से, कभी जो है ना सरकार सुल्तानी के तवस्सुल से। तो एक बात याद रखिए कि अल्लाह बंदे को बेवसीला देता है और दे सकता है, लेकिन अल्लाह को वसीला पसंद है, अल्लाह को वसीला महबूब है। यही वजह है कि अल्लाह ने हमको चांदनी दी है तो चांद के जरिए दिया, अल्लाह ने हमको रोशनी दी तो सूरज के जरिए दिया, अल्लाह ने हमको औलाद दी तो माँ बाप के जरिए दिया। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह अगर चाहता तो बगैर चांद को चांदनी दे सकता था, बगैर सूरज को रोशनी दे सकता था, बगैर माँ बाप के औलाद दे सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह को वसीला पसंद है।
अल्लाह को वसीला महबूब है। यही वजह है कि आज अली जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब सुल्तान हिंद के बारगाह में नजर अकीदत पेश करने के लिए आज इन्होंने इस बज़्म का एहतमाम किया है, ताकि उनके उर्स के मौके पे हम तमाम लोग इकट्ठा होकर बैठकर इज्तिमाई तौर पर हम सुल्तान हिंद के बारगाह में नजर अकीदत पेश करें, अकीदत और मोहब्बत के हारों फूल पेश करें। यही हमारा तरीका है कि हम बुजुर्गान दीन के तवस्सुल से हम खुदा के बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह के बारगाह में। कभी हम सुल्तान हिंद के तवस्सुल से, कभी महबूब इलाही के तवस्सुल से, कभी सरकार सुल्तानी के तवस्सुल से, कभी महबूब सुभानी कुदरत रब्बानी के तवस्सुल से। क्यों? हम जानते हैं कि अल्लाह बंदे को बेवसीला देता और दे सकता है, लेकिन अल्लाह को वसीला पसंद है, अल्लाह को वसीला महबूब है। यही वजह है कि हम बुजुर्गान दीन के तवस्सुल से हम अपने रब के बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। यकीनन इसलिए कि अगर आप हम गौर करेंगे, बुजुर्गान दीन की तारीख को पढ़ेंगे, तो हमको ये सबक मिलता है कि जब कोई भी आदमी बुजुर्गान दीन को इज्जत करता है, एहतराम करता है, तो अल्लाह ताला उस एहतराम की वजह से उस बंदे मोमिन के गुनाह को माफ फरमा देता है। हजरत बहाउल ज़करिया मुल्तानी को निगाह के सामने लाइए। एक मौके से काफिला उनका गुजर रहा था। एक तवाइफ है जो छत पे कुछ दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी रही थी। शोर व हंगामा हुआ। जब उसको ये पता चला कि वक्त के कारिफ़े बिल्लाह बस इस सड़क से गुजरने वाले हैं, तो अपने दोस्तों को छोड़ती है, दौड़ के नीचे आती है और नीचे आके दरवाजे पे खड़ी हो गई। कुछ ही देर में हजरत बहाउल ज़करिया मुल्तानी का काफिला गुजरता है, खड़ी होकर देखती है। कुछ देर के बाद जब काफिला गुजरा, दोस्तों के पास गई, और जब दोस्तों के पास गई तो उन लोगों ने पूछा क्या मामला था, इतना भाग दौड़ करके नीचे क्यों गए? कहा इधर से हुजूर की जो है वो गुजर रहे थे, सरकार गुजर रहे थे, मैं चाह रही थी कि मैं उनको देख लूं, मैं उनके एहतराम कर लूं। कहा कि छत से भी देख सकती थी। कहा सिर्फ देखना मकसद नहीं था, हजरत बहाउल ज़करिया मुल्तानी को अगर देखना मकसद होता तो मैं छत से देख लेती, लेकिन एहतराम जरूरी था, इसलिए मैं नीचे चली गई। पता है, सिर्फ महबूब सिर्फ जो है उनके एहतराम की वजह से मरने से पहले अल्लाह ने तौफीक दिया, वो अपने खता पे नादिम और शर्मसार होकर तौबा करती है और ताइब होकर मरती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम बुजुर्गान दीन से लौ लगाए, उनसे हम जो है उनका एहतराम करें, उनके बारगाह में हमेशा हम नजर अकीदत पेश करें। अगर ऐसा हम करते हैं, यकीनन जो है अल्लाह ताला कब जो है इंसान के दिल की कैफियत को बदल दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। और ये बात बिल्कुल हक है कि सुल्तान हिंद खाजगान के बारगाह में जब कोई आदमी कोई लौ लगाता है, जब नजर अकीदत पेश करता है, तो अल्लाह ताला सुल्तान हिंद के सदके में उस बंदे मोमिन की हर जायज तमन्ना और नेक आरज़ू को पाए में पहुंचाता है। तो आज मकसद यही है, अली जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब ने जो भी ये इंतजाम किया है, क्या है, ये चाहते वहां जा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने यहाँ लंगर का इंतजाम किया, आप तमाम लोगों को बुलाया, उलमाए किराम आए। मकसद ये है कि हम सारे लोग सारे भाई बैठकर हम जो है ना सरकार की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करें। मैं दिल की अंदर गहराई से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ये माइक मैं रहमत साहब किबला के हवाले। आइए नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चंद आशार के लिए आप हाफिज़ कुरान कारी खुशनहान जनाब हाफिज़ अली साहब किबला को मस्तों पे खुद कर देने वाली तरन्नुम रेसी में आप इनसे नाते पाक समाप्त करें।